Good morning and namaskar. And today I welcome you for the lectures of Mahajanpada period 600 to 300 BCE. And yesterday we have discussed few topics, and today we will be discussing the political conflict and the growth of Magadha Empire. As you know that Magadha was the greatest kingdom during the Mahajanpadas period. So let's directly move to the Mahajanpadas period, Magadha Empire and political conflict. Magadha. Magadha is a location on the Ganga plain. Magad, the region is actually in Bihar. If we see the map of Bihar, it's like this. And here is Patna, Gaya, Jahanabad, etc. And besides this, Rajgir, Vaisali, these are the part of Magadha Empire. Of course, Vaisali is a part of Vajji kingdom. So today I am going to tell you about the Magadha Empire. What were the history and polity of the Magadha Empire? There was a political supremacy of Magadha Empire. The one of the most important dynasties in Indian history has been the part of Magadha Empire. You name it, Haranyak dynasty consisting of Bimbishar, Ajatsatru, and later rulers. Then Sisupal dynasty consisting of Shishupal, Kalashok. Then after Nanda dynasty consisting of Mahapadam Nand and Dhananand. And the Nanda period was that period when the Magadha Empire became the one of the greatest empire in the world at that time. And when Dhananand was a king, Alexander attacked the northern western part of the India. And yesterday we have also studied the conflicts between the Ganas. There were different Ganas, like we have studied about Vajji kingdom. So today I will be teaching you about the political conflict. Let's start. मगध जो एम्पायर था उसकी राइज जो स्टार्ट हुई थी बिम्बिसार के अंडर स्टार्ट हुई थी. एंड बोला जाता है कि
मगध एम्पायर पे जो रूलर थे बिम्बिसार, उसके बाद अजात शत्रु आए, फिर नेक्स्ट 4 किंग आए, फिर शिशुनाग आए, फिर उसके सक्सेसर आए। बुद्ध जो थे अजात शत्रु के 8वें वर्ष के शासन काल में बुद्ध का डेथ हुआ। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। 8th year of reign of Ajatasattu, Buddha died. एंड जो जैन टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि महावीर जो है, सॉरी बिम्बिसार जो है, बिम्बिसार वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैन ट्रेडिशन। उत्तर ध्यान सूत्र के अनुसार, जो हम लोगों ने ये चीज़ें कल भी पढ़ी थी, उत्तर ध्यान सूत्र के अनुसार महावीर जो है अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदार आदि को छोड़ के वो एक रेनन्सिएट बन गए थे, वो एक साधु बन गए थे। एंड सुत्त निपत के अनुसार बिम्बिसार जो है पहले 7 ईयर्स, सुत्त निपत के अनुसार बिम्बिसार मेट गौतम 7 years before enlightenment। अजात शत्रु के 8वें साल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बट जो सुत्त निपत है उसके अनुसार 7 ईयर पहले, इनलाइटमेंट के पहले बुद्धा से मुलाकात की थी। बिम्बिसार ने। And Bimbisar was so generous that he has given a park or gifted a garden to the monastery where sadhak or monk used to live and perform meditation, and these parks are called Veluvan. एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन जो है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन इज हाईली impacted by the discussion of Bimbisar and Lord Buddha. B plus B, बिम्बिसार प्लस बुद्धा। कौन कौन से डॉक्ट्रिन इफेक्ट हुए? लेट्स सी। लाइक ईटिंग फ्रूट्स बाय मॉन्क, observance of monsoon retreat, then soldier joining army. Those who are in soldier which are joining army, they are not allowed to the part of monastery. And these were the parts of discussion with Bimbisar. And there was an event
when Buddha was crossing the Ganga, Buddha was crossing Ganga river and he could not pay price to फेरीमैन, जो फेरी जो चलाते थे उनको पैसे नहीं दे सके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो बिम्बिसार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जो भी फेरी टैक्स होते थे, नौका टैक्स होते थे, उनको रिलैक्स कर दिया। डेट मीन्स नेग्लिजिबल, जीरो ही कर दिया वो चीज़। किन लोगों के लिए? तो जो एस्केटिक्स थे, जो साधु सन्यासी थे, के लिए जीरो कर दिया। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार बिम्बिसार वाज किल्ड बाय कोनिका, जबकि जैना ट्रेडिशन इसको ऐसे नहीं मानते। एंड कोनिका वाज द नेम ऑफ अजातशत्रु। एंड अजातशत्रु ने ये चीज़ें रिमॉर्स की थी बुद्धा के सामने जब वो बुद्धा से मिलने गए थे। तो बात आती है अजातशत्रु की। अब अजातशत्रु का क्या इम्पैक्ट रहा? अजातशत्रु जी का क्या इम्पैक्ट रहा? तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि अंग से के किंगडम से हुआ, फिर वज्जी के किंगडम से हुआ। एंड वज्जी के किंगडम से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बहुत ही लंबा हुआ। और इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन भी स्टैब्लिश की थी। और जब इन्होंने महाकौशला से शादी की तो इनको काशी गिफ्ट में मिला था। काशी जो है गिफ्ट में मिली थी जब इन्होंने महाकौशल से शादी की थी। सेकेंड, इन्होंने अंग की क्वीन जो थी एक, उनसे भी शादी की थी। एंड सबसे ग्रेटेस्ट विक्ट्री है लिच्छवियों पर इन्होंने विजय हासिल की। लिच्छवी में कौन कौन से किंग थे? जैसे हाला और वेहाला, देयर वर द टू किंग्स जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपने किंगडम को सरेंडर करने के लिए। हाला एंड विहाला, नाम याद रखिएगा। हाला एंड विहाला वर द टू किंग्स जिन्होंने अपने किंगडम को सरेंडर करने से मना कर दिया अगेंस्ट द अजातशत्रु who was having the one of the strongest military in the world that time, and it was a long battle. फिर बैटल जीतने के बाद इन्होंने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनसे भी शादी की। जब लिच्छवी से लड़ाई हो रही थी तो इनको लगा कि लिच्छवी बहुत पावरफुल है
एंड वो हरा नहीं पाएंगी डायरेक्ट कॉम्बैट में लिच्छवी को। तो इन्होंने अजातशत्रु ने अपने जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर कौन कौन से हैं, वसाकार नाम का जो मिनिस्टर है, इनको भेजा लिच्छवी के अंदर स्ट्रेटजी बनाने के लिए। एंड वसाकार वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। देन इन्होंने लिच्छवी को अटैक किया एंड इस वेपन में लिच्छवी के अटैक के अंदर ही दो इम्पोर्टेंट वेपन के नाम याद आते हैं। वन इज रथमूशल एंड अनदर इज मुगदल। तो क्वेश्चन आएगा, रथमूशल किस युद्ध में यूज किए गए थे, अजातशत्रु ने किसके अगेंस्ट यूज किया था? तो लिच्छवी के अंदर, लिच्छवी से जब युद्ध हो रहे थे तो उन्होंने अजातशत्रु ने यूनिक वेपन यूज किया था। एंड अजातशत्रु उसी टाइम पे एक फोर्टिफिकेशन चाहते थे गंगा के अराउंड, जो पाटलीग्राम थे उसके अराउंड। एंड जो फोर्टिफिकेशन करवाए थे वो आज भी कुछ सेंस में आपको देखने मिल जाएंगे। एंड द पटना वॉज द मेट्रोपोलिस ऑफ दैट टाइम। लिच्छवी और अजातशत्रु के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी कब से कब तक चली, 484 एंड 468 BCE। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 16 ईयर्स बैटल चला था, समझ लो। एंड लिच्छवी को जीतने के बाद अजातशत्रु ने चंड प्रद्योत ऑफ अवंती पे भी अटैक किया था और उन्होंने भी अवंती को भी जीत लिया था। अब अजातशत्रु का विजिट बुद्धा के साथ हुआ तो उनके बारे में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अजातशत्रु की विजिट हुई थी, अजातशत्रु एंड बुद्धा की बीच जो विजिट हुई थी उसको देखते हैं। और इसका सोर्स क्या है, तो रॉयल पेट्रोनेज जो है इसका सोर्स है। द साइट ऑफ बरहुत जो है, बबरू बरहुत, ये बताता है कि अजातशत्रु जो थे विजिट किए थे बुद्धा के। एंड कब विजिट किए थे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, 8वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में। एंड जो विजिट थी वहां पे क्या लिखा हुआ था, अजातशत्रु भगवतो वंदते, अजातशत्रु वर्शिप द लॉर्ड बुद्धा। एंड वहाँ पे बहुत सारे सीन दिए हुए हैं कि अजातशत्रु एलिफेंट से आते हैं अपनी क्वीन के साथ और अपने जो सैनिक हैं उनके साथ, और भगवान बुद्ध के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया था।
एंड हम लोग जानते हैं कि अजात शत्रु ही वो थे जिनके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और बोला जाता है कि जब बुद्धा की डेथ हुई थी कुशीनगर में, तो अजात शत्रु was the king who went to the Kushinagar to collect the remains or relics of the Buddha. And later on he used these relics to build many astupas around Rajgiri, many monasteries, and he also hosted the first Buddhist council, one of the important event in the history of the Buddhism. एंड अजात शत्रु के बाद जो है 4 रूलर रूल किए थे हरण्यक डायनेस्टी में फॉर द 56 years. एंड अजात शत्रु के इमीडिएट जो थे सक्सेसर थे वो कौन थे? उदयभद्र, जिसको प्रकृत में उदयभद्र भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, उदयभद्र। एंड इसी को उड्डयन भी बोला जाता है। और इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि पाटलिपुत्रा या फिर पटना, जो आज मॉडर्न पटना दिख रहा है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट उड्डयन ने की थी। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ उड्डयन। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। इन्होंने चंपा पे भी विक्ट्री हासिल की थी। एंड उड्डयन was supposed to be the devotee of Jain. एंड बोला जाता है कि उड्डयन को मृत्युदंड दिया गया था। किसके द्वारा? तो अवंती के किंग जो थे वो एक रिवेंज लेना चाहते थे, तो उन्होंने उड्डयन को, एसेसिन को हायर करके मरवा दिया था। और उड्डयन के बाद नंदीवर्धन और महानंदिन आते हैं। एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार अनिरुद्ध, मुंडा, नागदर्शक उदयभद्र के सक्सेसर थे। ये कहीं पे भी आपको चीजें नहीं मिलेगी। जो मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। एंड मैं चाह रहा हूँ कि आप, टेक्स्ट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट जो ये लेक्चर सुनना है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो सो मैं टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस इतने लेक्चर्स ले रहा हूँ। एंड इट विल बी द बेनिफिशियल इफ यू लिसन टू द वर्ड्स एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो उड्डयन के सक्सेसर थे, कौन कौन से थे? एक तो पुराणिक ट्रेडिशन है, उसके अनुसार आपको मैंने बताया नंदीवर्धन और महानंदिन ये थे। बट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार अनिरुद्ध थे, मुंड थे,
नागदर्शक थे। These were the successor of उड्डयन। फिर हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी पे, डेट इज शिशुपाल डायनेस्टी। शिशुपाल डायनेस्टी में आते हैं जब, तो बोला जाता है कि ये जो किंग और किंगडम की सिस्टम शिशुपाल डायनेस्टी में आई है, वो अमात्य जो पहले हुआ करते थे हरण्यक के टाइम पे, उससे डिराइव किया गया है। अमात्य लेटर ऑन बिकम द किंग एंड शिशुपाल जो थे पहला किंग थे। शिशुपाल वाज द फर्स्ट किंग एंड इनका कैपिटल जो था, सेकंड कैपिटल था वैशाली। According to Mahavasitika, he was the son of Lichvi Raja of Vaishali. और शिशुपाल ने अवंती के राजा चंडप्रद्योत को भी हराया था वॉर में। अवंती, वत्स प्लस कौशल, इन तीनों किंगडम को हराया था शिशुपाल ने। एंड शिशुपाल के बाद जो है आते हैं कालाशोक। And the reason of the name is because of his dark skin. एंड इन्होंने वैशाली से कैपिटल शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा में। And there he continued the second Buddhist council. एंड इसके बाद से शिशुपाल डायनेस्टी का अंत हो गया। देन इसके बाद आते हैं महापद्म नंद की डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द दैट टाइम। तो हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे हैं। नंदा डायनेस्टी, महापद्म नंद। बुद्धिस्ट के अनुसार इनका नाम उग्रसेन है। बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं इसको, उग्रसेन। जैन में जो प्रशिष्टि पर्वन है, इसके अनुसार नंदा किंग वॉज द सन ऑफ द बारवर बाय गणिका। इसको नंदा किंग को अधर्मिका भी बोला जाता है।
जो कि धर्म के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसको अनाथकुला भी बोला जाता है, जिसकी की लिनिएज अननोन है। पौराणिक टेक्स्ट और फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट या फिर जैन टेक्स्ट को देखें तो देयर वेर 9 नंदा किंग्स, 9 नंदा किंग हुए थे। 9 जो हम लोग पढ़ते हैं ना, महापदम नंद धनानंद, बस यही नहीं है, इसके अलावा भी और भी किंग थे। और इसके रूलर को बोला जाता है एक रथ, सोल सोवर्निटी, सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। एंड नंदा किंग की विक्ट्री हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, तो खारवेला में जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे नंदा किंग का नाम मेंशन किया गया है। इनके नाम से कैनाल भी मेंशन किया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ नाउ नंद देहरा, नांदेद जो है ऑन द गोदावरी साइड, somewhat reflecting the Nanda rule over Deccan. धनानंद को the Greek account call him the Agrames और Gendrames, अग्रसेन और उग्रसेन। और नंदा किंग के पास जो डायनेस्टी थी वो हरण्यक और शिशुपाल के डायनेस्टी पे ही बिल्ड हुई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट। हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करेंगे।
हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है इसी टॉपिक का, द पर्शियन एंड द मैकेडोनियन इन्वेशन। द पर्शियन एंड मैकेडोनियन इन्वेशन। मैकेडोनियन इन्वेशन तो इस पार्ट में जो हम लोग देखते हैं तो पहला एविडेंस मिलता है कि द अखेमेनिड किंग, जो क्रूस नाम था या फिर साइरस जिसको बोलते हैं, वो मिलिट्री एक्सपेडिशन करता है कपिशा, जो कि सिटी ऑफ कपिशा। तो मिलिट्री एक्सपेंशन करता है। कौन थे? क्रूस या साइरस बुश जिसको बोल सकते हैं। ये कब की बात थी? 558 to 529 BC। एंड कपिशा कहाँ पे है? साउथ ईस्ट ऑफ हिंदू कुश माउंटेन। जब हम लोग मैप देखते हैं तो ये जो अफगानिस्तान के पास है ये हिंदू कुश रीजन है। एंड साउथ ईस्ट, जब साउथ में आते हैं और ईस्ट में आते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है, साउथ ईस्ट में ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे कपिशा रीजन है। द ग्रीक हिस्टोरियन के अनुसार तो हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस रीजन of the Persian Empire, and report that the tribute from the province amounted to 360 talent of gold dust। बोला जाता है कि जो ट्रिब्यूट होते थे किंग को, एम्पायर को, वो गोल्ड डस्ट 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट दिए जाते थे। नेक्स्ट इन्वेशन देखते हैं। एक बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन है, बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, जो मेंशन करते हैं किस चीज को? डेरियस फर्स्ट या फिर द्रव्यूस जिसको भी बोला जाता है। ये मेंशन करते हैं किस चीज को? तो गांधार के पीपल, हरुवती के पीपल, माका के पीपल या फिर मकरान कोस्ट जिसको बोलते हैं। These were the subjects of Persian Empire। Hamadan inscription refers to the Hindus, inhabitant of इंडस वैली। हमादान इंस्क्रिप्शन एक है, एक तो बेहिस्तून हमने पढ़ा जहाँ पे डेरियस फर्स्ट का बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन है, जो कि मेंशन करते हैं गांधार के पीपल को, हारूवती के पीपल को, मकरान के पीपल को। फिर हमादान इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो मेंशन करता है हिंदूज को।
डेरियस का कुछ और इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि पर्सिपोलिस, नक्स ए रुस्तम, नक्स ए रुस्तम, जो कि हिंदूज को भी इंक्लूड करते हैं और गांधार के पीपल को भी इंक्लूड करते हैं। और बोला जाता है कि किंग जो ये किंगडम के किंग जो है स्काइलक्स नाम के किंग के अंडर एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया था, इंडस को एक्सप्लोर करने के लिए। फिर जो डेरियस के सक्सेसर हैं उनमें नाम आता है जेरेक्स। (486 to 465 BC में इन्होंने भी अपना होल्ड हिंदूज और गांधार पे बना के रखा था। This is reference to Jerex destroying the sanctuary of Taivas. और जेरेक्स के डेथ के बाद जो पर्शियन एम्पायर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट जो गांधार और जो इंडस हिंदूज थे वो आगे के इंस्क्रिप्शंस जैसे कि अर्ताजेरेक्स, डेरियस थर्ड, उसमें भी मेंशन मिलता है। एंड दीज वर लाइक द मर्सनरीज। एंड पर्शियन पीपल का क्या इम्पैक्ट रहा इसको समझने के लिए देखते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओनली, जबकि पर्शियन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहा है खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि है स्क्रिप्ट, उसका यूज होने लग गया इंडिया में। एंड इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अरमाइक स्क्रिप्ट, जो पर्शियन की ऑफिशियल स्क्रिप्ट थी। एंड पर्शियन रूलर्स का इम्पैक्ट हम लोगों को मगध और मौर्यन एम्पायर के रेन में भी दिखता है, जैसे कि अशोका के पिलर जो है that were the inspired from the Persian emperors. डेरियस को हराने के बाद जो अलेक्जेंडर जो है इंडिया की तरफ मूव किए। एंड नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया में बहुत सारे प्रिंसिपलिटीज थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर अम्बी। अम्बी कहाँ पे रूल कर रहे थे? तक्षशिला में। अम्बी वॉज रूलिंग तक्षशिला। और इन्होंने क्या किया? एक्सटेंड किया अपना सपोर्ट टू द अलेक्जेंडर। बट पुरु जो है, ये पोरस जो है वो रूल कर रहे थे झेलम और चेनाब के एरिया में।
अम्भी और अलेक्जेंडर मिलके हमला करने वाले थे पुरु के अगेंस्ट, एंड पुरु ने ब्रेवली फाइट किया था। और जब फाइट हो रहा था तो इसके अलेक्जेंडर के सोल्जर्स जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और फिर जब वो लौटने लगे तो वहाँ पे डिफरेंट जो गनास थे, जैसे कि मलोई, मालवास, ऑक्जेंड्रोई, क्षुद्रकास, सीबी, ये सारे गना ने मिलके अलेक्जेंडर को आर्मी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। एंड अलेक्जेंडर की आर्मी लड़ते लड़ते थक चुकी थी और इंडस के डेल्टा पे पहुंची। एंड इस तरह से अपना रूट बेबीलोन से गेड्रोसिया की तरफ निकले। एंड इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर का डेथ हो गया था। और अलेक्जेंडर का जो ये इम्पैक्ट था नॉर्थ वेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा नहीं था, वो दैट वाज द वेरी लेस इम्पैक्ट रादर देन पर्शियन का इम्पैक्ट ज़्यादा था। और हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं, पर्शियन और आर्मी स्ट्रक्चर। तो ये हम लोगों ने ख़त्म की। अब बात आती है, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ते, लैंड और एग्रेरियन एक्सपेंशन किस तरीके से था। लैंड और एग्रेरियन एक्सपेंशन, जब लिटरेरी टेक्स्ट को देखते हैं तो ये रेफर करता है NBPW साइट्स की ओर। एंड हम लोग जानते हैं कि गंगा एक प्लेन रीजन है, एंड प्लेन रीजन होने की वजह से एंड एसोसिएटेड विद द रिवर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में ग्रो करते आया है, आज से नहीं वर्षों से। तो जब हम लोग लैंड और एग्रेरियन सेटलमेंट देखते हैं तो उसमें रूरल सेटलमेंट का इम्पोर्टेंट रोल आता है। जहाँ पे एक टर्म आता है कुटी, विनय पिटक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 1 2 3 4 कुटीज के बारे में चर्चा की गई है। एंड कुटीज को बोला जाता है कि इट कुड बी द प्रोबब्ली द हैमलेट, एंड द वर्ड गामाज, और ग्राम जो है, ग्राम को गामा बोला गया है, वो भी हैमलेट को रेफर कर सकता है या फिर विलेज को रेफर करता है। तो जब आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स आते हैं ग्रामर्स के, जैसे कि आरामिक ग्रामर, आरामिक गामा, वडकी ग्रामर, नालाकार ग्रामर,
नालाकार ग्राम। लोनकर वॉज ए साल्ट मेकर। वडकी ग्रामर जो था कारपेंटर का था। नालाकार वॉज रीड मेकर। पार्क अटेंडेंट था रामिक ग्राम। The people following these professions may have been constituted majorly in such village। और जो प्रोफेशन वाइज विलेज बने हुए थे, आज की तरह नहीं था कि कास्ट वाइज विलेज। उस टाइम प्रोफेशन, जैसे कि वडकी लोग जो कारपेंटर्स थे वो एक विलेज में रहते थे, उसको वडकी ग्राम बोला जाता था। जो रीड मेकर्स थे, बीड मेकर्स थे, वो एक ग्राम में रहते थे, उसको नालाकार ग्राम में बोला जाता था। जो साल्ट मेकर थे उसको एक ग्राम में रखा जाता था, उसको लोनकार ग्राम में बोला जाता था। एंड इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है, क्या है? गाम गामिनी। क्या है? गाम गामिनी या फिर गामिका। इसको क्या बोला गया है? विलेज हेडमैन। चूंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड था तो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था इकोनॉमी में। उस टाइम पे क्या क्या प्रैक्टिस किए जाते थे, जैसे कि एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस किए जाते थे, क्रॉप सोइंग प्रैक्टिस किए जाते थे, एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि रूरल एरिया में प्रैक्टिस किए जाते थे। और इस रीजन में क्या हुआ था कि एनबीडब्ल्यूपी एनबीपीडब्ल्यू फेज में आयरन का यूज़ बढ़ गया था। एंड आयरन का यूज़ होने से क्या हो सकता है, तो अब देखिए खेती में प्लॉज वगैरह थे, हल वगैरह जो यूज होते थे वो आयरन के, जितने इम्पोर्टेंट हल वगैरह थे उसको आयरन के बनाया गया। एंड इससे क्या हुआ कि खेत जोतने में बहुत मदद मिली। एंड फिर इसी से जो है बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ प्रोडक्शन पे, क्रॉप्स पे, जिससे कि फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई और इसी से टैक्स भी आने लगे। जब हम लोग मॉडर्न सेटलमेंट सिस्टम देखते हैं तो डेट वाज ओनली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल, मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल, में बी इट परमानेंट सेटलमेंट, बी इट महलवारी सिस्टम, बी इट रैयतवारी सिस्टम, सब एग्रीकल्चरल पे बेस्ड थे। और
आज देखते हैं कि हमारी लैंड हेक्टेयर की साइज 1.08 हेक्टेयर पर फार्मर हो गई, बट उस टाइम पे पॉपुलेशन चूंकि उतनी नहीं थी तो सबके पास मॉडेस्ट प्लॉट ऑफ लैंड थे। एक स्टोरी दी गई है कि ब्राह्मण कश्यप भारद्वाज नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास एक नाला विलेज में 500 गज का प्लॉट था। एंड ब्रह्मदेव जो थे वो विलेज थे जो कि लैंड गिफ्ट किया गया था ब्राह्मण को किंग के द्वारा। ब्रह्मदेव एंड एक विलेज है जहाँ जिसका नाम पंचशाला, वो ब्राह्मण का विलेज था। एंड बोला जाता है कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर बुद्धा वॉज रिफ्यूज टू हैविंग फूड। और धीरे धीरे जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस होने लगा था। विनय पिटक के अनुसार आराम जो थे दैट आर द लैंड गिफ्टेड टू द संघास एंड फ्लावर जो थे पुष्पाराम जो थे और फलाराम। पुष्पाराम was the flower garden while the orchard was named as फलाराम। जब अंगुत्तर निकाय को पढ़ते हैं तो अंगुत्तर निकाय में भी कुछ ऐसे ही टेक्स्ट दिए हुए हैं। वहां पे बताया गया है कि संघ को जो है एग्रीकल्चरल लैंड नहीं लेना चाहिए। एंड दिग्ग निकाय और मध्यम निकाय जो है वो मेंशन करते हैं कि बिंबिसार और प्रसेनजित जो थे उन्होंने लैंड दिया था किस चीज को, संघ को। एंड दीज वर मोस्टली द वेस्टलैंड फॉरेस्ट और माइंस। एंड लैंड was the important source of revenue at that time, even today. और गौतम धर्मसूत्रा के अनुसार देखा जाए तो बोला जाता है कि किंग जो है टैक्स लगाता था 1/10, 1/8 और 1/6 of the produce by the farmers. एंड उस टाइम पे स्लेवरी सिस्टम भी था, तो दास दासी जो कि स्लेव्स थे, दास इज मेल स्लेव एंड दासी वाज फीमेल स्लेव। एंड कामाकारा जो थे एक न्यू टर्म्स था जो हायर किया जाता था फॉर लेबर, मजदूरी के लिए, इन रिटर्न्स फॉर वेजेस, पैसा दिया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। दशा कामकारा is also sometimes used for laborers. अष्टाध्यायी refers
to वेतन wages, वेतनिका wage earners. From village to town. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा विलेज से टाउन की ओर। अतरंजी खेरा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग सेटलमेंट पैटर्न देख सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस, पीजीडब्ल्यू से लेके एनबीपीडब्ल्यू तक। तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने से कुछ दिख नहीं रहा है, बट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो फाइंड किए गए हैं उस टाइम पे, जैसे एरो हेड हो गया, स्पेयर हेड हो गया, साफ्ट हो गया, सिकल हो गया, टोंग हो गया, क्लैंप हो गया, रिंग फास्टनर हो गया, सॉकेटेड क्लैंप हो गया, स्टेपल हो गया, नेल हो गया, हुक हो गया, बोरर हो गया, चॉपिंग नाइफ, चॉपर्स, पाइप, चीजल, एक्स, नाइफ, लीड, डिस्क, बैंगल। इस तरह से अराउंड 147 वेपन्स मिले हैं जो कि यूज किए जाते थे फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड यूज एटसेट्रा। फिर वहाँ पे क्वाइंस भी मिले हैं जो कि डिफरेंट सिंबल्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि सन के सिंबल को होल्ड करते हैं, पिकॉक ऑन हिल को सिंबल को होल्ड करते हैं, सिक्स आर्म्ड वाले सिंबल्स को होल्ड करते हैं, सर्कल को होल्ड करते हैं। कॉपर कॉइन भी मिले हैं जो मोस्टली या तो स्क्वायर है या फिर डायगोनल है। और वहां पे जब थोड़ा सा और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो वहां पे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स या फिर ग्रेन्स सीरियल्स मिलते हैं, जैसे कि राइस हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, खेसारी हो गया एटसेट्रा। अब आते हैं द इमरजेंस ऑफ सिटी लाइफ। ये पीरियड सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहीं पे जो सिटी लाइक पाटलिपुत्रा, राजगिरी, ये सब सिटी इमर्ज हुई थी। साउथ में बोला जाता है कि कोरूमल एक जगह था, कोरूमनाल, जहाँ पे तमिल ग्रेफिटी आपको देखने को मिलती है। और बोला जाता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज जो था या फिर अर्बनाइजेशन फेज उस टाइम से बिगिन हुई थी। बट अभी जो क्लारी एक्सकवेशन हो रही है तो वो बताता है कि इट इज मच बिफोर दैट। अभी तक का जो एविडेंस है उससे कोरोमल जगह, कोरोमनाल जगह से पता चलता है कि वहां से सेकेंड एक्सकवेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन, सॉरी अर्बनाइजेशन फेज स्टार्ट हुई। उससे पहले आयरन यूज नहीं किया जाता, बट किलारी जो है एक्सकवेशन में बहुत सारे आयरन टूल्स मिले हैं। एंड
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि पुरा मीन्स टाउन या और सिटी, नगर फोर्ट्रेस और टाउन, निगम NIGAM निगम, दिस इज रेफर टू मार्केट टाउन। एक होता है NEGAM, दैट इज नेगम, वो होता है कि गिल्ड्स, मर्चेंट गिल्ड्स को बोला जाता है नेगम। निगम इज द मार्केट टाउन। ग्राम नगर, एंड निगम इज बिटवीन ग्राम एंड नगर। फिर आते हैं महानगर, जैसे चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी, these were the Mahanagars of that time. The text often refers और cities जो महानगर्स थे उसमें वॉल, गेट्स, वॉच ओवर्स, ताकि देख सके अर्बन लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है। और ऑल्सो फॉरेस्ट से रिलेशंस क्या था कि फॉरेस्ट वॉज द इम्पोर्टेंट सोर्स जहाँ पे कि आपको माइंस मिल जाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाएंगे। एंड फॉरेस्ट का एविडेंस हम लोगों को महाभारत में भी मिलता है, जैसे खांडव वन या फिर शकुंतला की स्टोरी जो है वहां पे भी मिलता है। कालिदास की जो शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां पे भी फॉरेस्ट मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमरजेंस ऑफ सिटी लाइफ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आर्कियोलॉजिकल एंड प्रोफाइल ऑफ अर्ली सिटी। कुछ अर्ली सिटीज हैं जैसे कि उज्जैन है, तक्षशिला है, वहाँ पे अर्बन प्लानिंग किस तरीके से था, किनशिप कैसे था, टाउन इकोनॉमी की क्या थी, क्वाइन था तो किस तरीके का क्वाइन था, क्या इंपॉर्टेंस था। When we see the archaeological and the literary profile of the city during Mahajanpada's period, there were numbers of cities, and we can see these cities were located in different regions like Kashmir, Punjab, Sindh, northeastern states, etc. इम्पोर्टेंट जो सिटी है उसमें तक्षशिला और विता एक इम्पोर्टेंट सिटी है, तक्षशिला एंड विता। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे सिटीज आते हैं जहाँ पे डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न था, वहाँ की हिस्ट्री अलग थी, वहाँ की ज्योग्राफी अलग थी, तो सब ने अपने अपने हिसाब से कन्वर्ज करना स्टार्ट किया और एक डिफरेंट रीजन के बारे में बताते हैं। जैसे कि जब हम लोग इंडिया के मैप देखते हैं तो आपको बताते हैं, वन सेकेंड। When you see the India का मैप, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ये भी था उस टाइम पे हमारा इंडिया का पार्ट। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो इम्पोर्टेंट सिटी थे वो थे चारदासा,
चार सारा and Taxila. These were the important cities. ये खैबर पास के राउंड थे। तो इन जगहों से जो पासेस थे उनसे बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न अटैकर आए और इन्होंने इस सिटी को अटैक किया था। तो फिर तक्षशिला से कश्मीर की ओर आ सकते थे। फिर यहाँ पे पेशावर जो पुरुषपुर है, फिर चारदासा को काल पुष्प कलावती नाम से ही जाना जाता है। एंड बोला जाता है कि ये फाउंड किया गया था पुष्कर सन ऑफ भरत। चारदासा है, तक्षशिला है। तक्षशिला अराउंड झेलम रिवर के पास थे, चारदासा उससे ऊपर थे। फिर पंजाब में जब आते हैं तो पंजाब में रोपर जगह आती है, रोपर। और तक्षशिला को एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है। वहीं से हमारे चाणक्य जो जो इतने फेमस है आज के जमाने में भी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। एंड बोला जाता है कि जन्मजय जो थे इन्होंने नाग सेक्रीफाइस किया था, जो नाग यज्ञ होता है, नाग यज्ञ। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सांपों को सेक्रीफाइस किया था इसी तक्षशिला वाली जगह पे। इंडो गैंगेटिक डिवाइड्स को देखते हैं तो इम्पोर्टेंट सिटीज मिल जाते हैं, जैसे अपर गंगा हो गया, लोअर गंगा, मिडिल गंगा और दोआब रीजन्स वगैरह। तो अपर गंगा में जो कुमाऊं रीजन्स थे, कुमाऊं रीजन, जहाँ पे काशीपुर पाया जाता है, नैनीताल पाया जाता है। These were the important cities. फिर हरियाणा में जाएंगे तो हिसार है, कर्ण का किला है, का किला है। फिर पुराना किला जो इंद्रप्रस्थ में है। और धीरे धीरे हम लोग मिडिल गंगा या फिर अपर गंगा की ओर बढ़ेंगे तो वहां पे मेरठ मिल जाएगा आपको, कौशाम्बी मिल जाएगी। हस्तिनापुर जो जगह दिल्ली को ही बोला जाता है, वहीं पे जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव का जन्म हुआ था। फिर मथुरा जो कि महाभारत काल से रिलेटेड है। काम्पिल्य जो पंचाल की राजधानी थी। काम्पिल जो है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। फिर अही क्षेत्र जो कि बरेली में है। देखिए हम लोग एक डिटेल में आपको बता देते हैं चीजें जो हम लोग
PGW, NBPW ये सब डिस्कस करते हैं, वो है क्या आखिर? सी सबसे पहले आते हैं OCP, ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी वेयर। ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी वेयर ये प्री 1200 BC, ये प्री 1200 BC में पीरियड था। फिर आता है PGW। PGW ये 1100 से 800 BC। ये क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर। फिर आती है NBPW, 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी। फिर आता है स्टैम्प्ड एंड इंसाइज्ड रेड वेयर, ये आती है 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC। फिर ग्लेज्ड वेयर आता है, ये आता है 11th to 15th सेंचुरी। ठीक है। कौशाम्बी किसके अंदर आता था? वत्स किंगडम के अंदर। और मिडिल और गंगा वैली की सिटी थोड़ा सी देख लेते हैं। तो श्रावस्ती थे, कौशल थे, बहरेच थे, गोंडा थे, ये सब सिटीज तो गनवेरिया, पिपरवा, बस्ती, ये सब सारा सिटी जो था ईस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न यूपी में आते थे। बाढ़, बिहार में बाढ़ और मुजफ्फरपुर जगह थे। फिर राजा विशाल का गढ़, these were the important cities। सेंट्रल इंडिया और डेक्कन में कुछ कुछ सिटीज थे, जैसे उज्जैन, इंपॉर्टेंट सिटीज थे उज्जैनी। त्रिपुरी जो नर्मदा वैली के अराउंड था। पौनी वेनगंगा वैलीज के अराउंड थे। तेर नागल साउथ बैंक ऑफ नर्मदा। So these were the important cities in NBPW phase. So this is about today's lecture. Thank you. Thank you for joining my classes. Thank you. And thank you for subscribing.